Hello students, today we are going to discuss CBSE class 10th English, this session 2021 to 22 question paper pattern of term 1. Clear? Very important to understand that how we are going to have the questions and what kind of a pattern CBSE has decided. Everything about this new assessment scheme I have already discussed in my previous video. So today we are going to discuss the question paper pattern of this session. Fine. And important thing, CBSE has already mentioned in a new circular that they are going to provide us the date sheet, tentative date sheet. So that will be 10th of October 2021. So please keep checking CBSE site regularly on regular basis so that you can come to know that whenever you are having your exams. And please, it is very important to prepare yourself as per your question paper pattern that CBSE has provided us. Now, in the very starting, I have already told you that this paper is going to be complete MCQ. First, very important point. We are going to have complete multiple choice questions in this paper. Second thing, this paper is going to be of 90 minutes. So you are going to get 90 minutes to do this paper. Second important thing. Third, it is very important to understand properly that what is the proper pattern mentioned from CBSE side so that we can perform better in our exam. Fourth important point, what is the syllabus? That also we have already discussed, that what is the syllabus of our paper. So which all chapters are in this, what all poems are in this. Please do thorough reading of that, and according to that only we are going to prepare. Now in this starting, CBSE has told us that this is going to be of 8th week window period and it is going to be between November to December. But now they have clearly mentioned that we are going to have these exams in second week or in the mid of your November. That's the reason they are providing us the tentative dates on 10th of October. So please keep checking your site regularly so that you will get update on regular basis. Now let us discuss the question paper pattern. So अब हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे. आई होप दीज बेसिक थिंग्स आर क्लियर टू यू. वी आर गोइंग टू हैव एग्जाम हमारे पास होगा 90 मिनट्स के लिए और हमारे को उसे कंप्लीट करना होगा. सेकेंड, 2021-22 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑलरेडी आ चुका है तो हमें उसे थॉरोली अच्छे से समझना होगा. थर्ड, हमारे को बताया गया था कि 8 वीक्स विंडो पीरियड टाइम होगा जिसमें हमारे नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम होंगे. अब बता दिया गया है कि 10 अक्टूबर से हमारे को जो है शायद उम्मीद है कि हमारे को अपनी टेंटेटिव डेट शीट मिल जाएगी कि कब हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं. सो प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छे से करनी है और हमारे पेपर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में शुरू हो ही जाएंगे. फाइन. सो आई थिंक दैट आपके सारे स्कूल्स वगैरह में भी आपकी डेट शीट प्रिपेयर कर दी गई होगी. कुछ प्लानिंग चल रही होगी कि बच्चों को उस फाइनल पेपर से पहले, हमारे को टर्म 1 के फाइनल पेपर से पहले एक प्रैक्टिस कराई जाए. सो वो आपका टाइम पीरियड अभी चल ही रहा होगा. सिलेबस भी आपका काफी हद तक कंप्लीट हो चुका होगा. सो कीप चेकिंग द वीडियोज एंड ऑल सो दैट यू कैन गेट अपडेट योर सेल्फ एंड डू रिविजन प्रॉपरली. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, that how we are going to get the question. Complete MCQ, multiple choice questions होंगे but इतना ज़्यादा easy नहीं होगा. So question paper जो हमारा SQP है, फाइन, जो सैम्पल पेपर है CBSE ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि हमारा पेपर कैसे आने वाला है. फाइन. सबसे पहले हमारे जो इंग्लिश का पेपर होगा उसके 3 सेक्शंस है. फाइन. एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे ही मैं आपको समझाने वाली हूँ, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए. वी आर हैविंग 3 सेक्शन A, B, C. ओके. जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? रीडिंग सेक्शन. जो हमारा सेकेंड सेक्शन है उसमें हमारी ग्रामर और राइटिंग इंक्लूड होती है. और जो हमारा थर्ड सेक्शन है उसे हम कहते हैं हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेक्शन. फाइन. सो आई एम राइटिंग लिटरेचर हेयर. ओके. अब समझना जरूरी क्या है हमारे इन सब सेक्शंस के बीच में. दिस इज आवर सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C. इनके अंदर हमारे सब सेक्शंस होंगे. सब सेक्शंस इन द सेंस
सब सेक्शंस कैसे होंगे, जैसे कि स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 जो है हमारा आएगा अनसीन पैसेज, फाइन। सेक्शन 1 हमारा है अनसीन पैसेज, और यू कैन से डिस्कर्सिव पैसेज, जिसमें इवेंट के बारे में, किसी के बारे में, पर्सन के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपको डिटेल दी जा सकती है और उसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, फाइन। फिर मूव करते हैं हम सेक्शन 2 में। सेक्शन सी जो होगा आपका केस बेस्ड स्टडी होगा। बहुत आसान है इसको समझना। केस बेस्ड स्टडी कैसे, उसके अंदर जो है हमारे को कुछ डेटा प्रोवाइड किया होगा, मे बी कोई फ्लो चार्ट गिवन हो, कोई पाई चार्ट गिवन हो, कोई आपको सर्कल में डिटेल से डिफाइन हुई होंगी कि इस ईयर से इस ईयर में ये परसेंटेज इंक्रीज हुई, ऐसा हुआ, ये हुआ। सो उसे कहते हैं केस बेस्ड स्टडी। केस स्टडी करना होगा, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस होंगे। सो बोथ आर योर अनसीन पैसेजेस। बस फर्स्ट वाले को है हमने डिस्कर्सिव पैसेज कहा है, सेकंड वाले को हमने केस बेस्ड स्टडी का है। अब इंपॉर्टेंट क्या है समझना, हमारे सेक्शन 1 में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 1 में हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन 2 में हमारे टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, फाइन। सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चंस है, सेक्शन 2 में 8 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ दिस 10 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चंस में से बच्चों को 8 क्वेश्चंस करने होंगे और इन 8 क्वेश्चंस में से बच्चों को 6 क्वेश्चंस करने होंगे। ये क्लियर है? दैट मींस सेक्शन ए रीडिंग में हमारे टोटल 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनमें से हमारे को 8 + 6 कितने होते हैं? 14 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन ए क्लियर है। सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में आपके पास क्या है? टर्म 1 में, टर्म 1 में सेक्शन बी में हमारे पास ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो ग्रामर के टॉपिक्स जैसे कि आपको पढ़ाए गए होंगे, टेंसेस है, बहुत बेसिक टॉपिक्स है जो आपने ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेस में भी करी है। मॉडल्स हैं, डिटरमाइनर्स हैं, और आपका स्कूल में शायद रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी होगी नरेशंस की जगह पे आप इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, ज्यादा इजी रह जाएगा। ग्रामर में सिर्फ हमारे पास ये है। और राइटिंग में क्या है? राइटिंग में सिर्फ हमारे पास लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में हमारे पास कंप्लेंट लेटर है, इंक्वायरी लेटर है, लेटर टू एडिटर है, 3 टाइप्स। सो हमारा सेक्शन बी जो है उसके अंदर ग्रामर और राइटिंग आता है, जिसका सिलेबस हमारा ये है। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी? सेक्शन 1 और 2 सेक्शन ए में इंक्लूड हो गया। सेक्शन बी में हमारा सेक्शन 3 आएगा, दैट मीन्स दिस इज योर ग्रामर, एंड सेक्शन 4 आएगा, दिस इज योर राइटिंग। सो सेक्शन सी जो है हमारा ग्रामर है, सेक्शन 4 जो है हमारा राइटिंग है। ग्रामर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि पूरा पैसेज दे दिया, उसके अंदर 3-4 ब्लैंक्स होंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, नहीं। किस तरीके से देखा होगा? सिंपल एक लाइन दे दी है, उसके बीच में एक ब्लैंक है, 4 ऑप्शंस है। वन मोर फिलिंग द ब्लैंक्स इज देयर, ऑप्शंस है। वो कैसे होंगे? कोई टेंसेस पे दे देंगे, ही ब्लैंक गो देयर, सो ऑप्शन से रखेंगे वॉज, हैज, डिड। सो आपको समझ के करना होगा, ही ब्लैंक गो देयर, सो अलोंग विद गो इट शुड बी वॉज, हैज और व्हाट इट शुड बी, ऑप्शंस विल बी देयर। सो पर्टिकुलर समझ में आ जाएगा हमारे को क्वेश्चंस देखते ही कि वो किस तरीके से दे रखे हैं, टेंसेस है, मॉडल्स है, डिटरमाइनर्स, नरेशंस कैसे हैं, फाइन। सो ग्रामर के अंदर हमारे क्वेश्चंस होंगे। और फिर हमारा सेक्शन बी जो राइटिंग है, राइटिंग भी कैसे आएगा? हमारे पास लेटर राइटिंग है सिर्फ क्वेश्चन में, तो हमारे को क्वेश्चन प्रोवाइड करा गया होगा, यू आर दिस एंड दिस ऑफ दिस स्कूल, यू वांट टू मेक अ राइट अ कंप्लेंट लेटर टू दिस पर्सन दैट योर स्कूल हैव परचेज्ड नंबर ऑफ दीज मटेरियल और दिस बुक सेट बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट प्रॉपरली। आंसर भी आपको प्रोवाइड करा हुआ है इस क्वेश्चन का। आंसर कैसे प्रोवाइड करा गया है? सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लेटर कंप्लेंट लिखते हैं, फॉर्मेट क्या है हमारे पास? होता है सेंडर एड्रेस, हम एक लाइन छोड़ते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, देन वी राइट डाउन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, देन आवर लेटर स्टार्ट। दिस इज द कॉमन वे। अब उन्होंने क्या किया है, सेंडर एड्रेस की जगह पे ए एंड ब्लैंक कर दिया है, ओके। और एंडिंग में जब आपका लेटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दे रखा है कि ए के आपकी ये 4 ऑप्शंस है, व्हाट शुड बी द सेंडर एड्रेस, प्रॉपर सेंडर एड्रेस। वो ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग नहीं है, अगर आपको प्रॉपर वे पता है लिखने का सो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अब शायद सब्जेक्ट ही नहीं दिया, सब्जेक्ट के आगे लिख दिया बी ब्लैंक। सेकंड आपका क्वेश्चन हो गया इस राइटिंग में से कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। लेटर के बीच में से कोई लाइन गायब कर दी है, सी ब्लैंक, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। So how many questions we are having? We are having 6 questions in this, 6 questions in this,
and we are supposed to attempt 5 in this and 5 in this. That means section B में हमारे 12 क्वेश्चंस हैं और हमारे को उसमें से 10 करने हैं. क्लियर? अभी मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, इजी हो जाएगा. लेट अस मेक दिस एज a star. This is as important. 18 are there, 14 we will do. This is important. We are having 12 questions, 10 we will do. Now let's move to your section C, literature. Section C literature कौन से सेक्शन से शुरू होगा? फर्स्ट एंड सेकंड A में चले गए, थर्ड एंड फोर्थ B में चले गए, तो दैट मीन्स ये शुरू होगा सेक्शन नंबर 5 से. और पता है इसमें कितने सेक्शन है? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 and your section 9. 5 different sections we are having. Section number 5, 6, 7, 8 आपके extract based होंगे. That means उसमें आपको RTC मिलेंगे. स्टोरीज पढ़ी है हमने, पोएम्स पढ़ी है हमने, उसमें से हमारे को RTCs मिलेंगे एंड फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होंगे. सेक्शन नंबर 9 जो है वो थोड़ा अलग है. उसके अंदर कोई RTC या एक्सट्रैक्ट नहीं होगा. वो डायरेक्ट कोई भी एक लाइन उठाएंगे चैप्टर में से और उसके 4 ऑप्शंस दे देंगे. जैसे कि पोएम का नाम दे दिया और बोल दिया कि पोएट कौन है. ये तो बहुत इजी हुआ. अब इसके अलावा आपसे जो है पूछ लिया गया कि इन वन ऑफ द स्टोरी अ 13 years old description, 13-year-old girl description is given. So name the character. Wanda Protonsky is the option, Natalia is the option, Anne Frank is the option, and none of the above is the option. So 13-year-old girl is mentioned in the chapter from the diary of Anne Frank. Our answer should be Anne Frank. So direct statement is taken from the chapter and there are different options. So section 5, 6, 7th, 8th, each section will have 5 questions. Fine. So let us rub this. We are having 5 in this, 5 in this, 5 in this, 5 in this, and in 10th section we are having in 9th section we are having 10 questions. That means total how many are there? In C section we are having 30 questions and we are supposed to do 26. So first is 14 question we will do out of 18. Second is 10 questions we will do out of 12. Third is 26 questions we will do out of 30. Now something important. In your section C literature, सेक्शन सी लिटरेचर के अंदर हमारे को 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से बोला 26 कीजिए. अब ये आपको बहुत अच्छी लिबर्टी दी गई है. मान लीजिए आपको सेक्शन 5 में से 5 में से सिर्फ 4 ही आते हैं, तो मैंने भाई 4 ही कर लिए. अब नेक्स्ट सेक्शन में से मुझे 2 ही आते हैं, मैंने वहां से 2 कर लिए. 9th में से मुझे सारे 10 के 10 आते हैं, मैंने वहां से 10 कर लिए. कुल मिलाकर 26 होने चाहिए. जरूरी नहीं है कि इसके पूरे 5 करो, कोई एक छोड़ना ही छोड़ना होगा, ऐसा नहीं है. लिबर्टी है. अगर हम कोई एक छोड़ देंगे तो हमारे 26 क्वेश्चन होंगे ही नहीं, है ना. तो इसमें से भी जितने मन चाहे उतने कर सकते हैं. टोटल 26 होने चाहिए. क्लियर. बट ग्रामर और राइटिंग में क्या है, जो ग्रामर के 6 क्वेश्चन है उसमें से ही 5 करने हैं, जो राइटिंग के 6 क्वेश्चन होंगे उसी में से 5 करने हैं. सेक्शन ए में फर्स्ट अनसीन पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज 10 में से 8. सेक्शन सेकेंड जो है अनसीन पैसेज अगेन केस बेस्ड स्टडी 8 में से 6. सो इतना क्लियर हो गया. अब इंपॉर्टेंट थिंग समझने के लिए, टोटल हमारे को जो क्वेश्चन करने हैं वो है 14, 10, 26, दैट मीन्स 50 क्वेश्चंस हमारे को करने हैं. सीबीएसई हमें 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, हम करेंगे 50. पर आपको पता है आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं पेपर के? आपका मैक्सिमम मार्क्स पेपर का जो है वो है 4040 और आपके क्वेश्चंस हैं 50. ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स. कुछ कैलकुलेशंस करें. हर क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स का हुआ? ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ 0.8 मार्क्स. कितनी ट्रिक अप्लाई करी है सीबीएसई ने, इतनी सारी मैथमेटिक्स अप्लाई कर दी. 50 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू. टोटल पेपर के मार्क्स है 40. दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है. हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो 50 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 40. थोड़ा खचपच हो गया. सो 40 इज योर टोटल
मैक्सिमम मार्क्स जिसका आपका पेपर होगा। अब आज की वीडियो में आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी मैं, फाइन, इंपॉर्टेंट लिंक्स, प्लीज उसे देखें। उसके अंदर आपको 10th क्लास के टर्म 1 के अप्रोक्सीमेटली 10 सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर रही हूं अलॉन्ग विथ योर आंसर्स, एंड नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश, ऑफ योर ऑल सब्जेक्ट्स। First PDF will be that. Second link is your current SQP that CBSE has provided. CBSE ने जो आपको SQP प्रोवाइड करा है वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज उसे अच्छे से गो थ्रू करें, उसे समझे कि किस तरीके के आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर कि आपके 60 क्वेश्चन है, हम 50 कर रहे हैं, पर पेपर 40 का है। क्लियर? अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, इसको समझने के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। एक्सट्रैक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, लिटरेचर, रीडिंग, एवरीथिंग काफी अच्छा स्कोरिंग है। और ऑलरेडी सीबीएसई ने पहले कहा था कि शायद आपका टर्म 1 आपके मेन पेपर के रिजल्ट में इंक्लूड किया जाएगा, बट हां अब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि टर्म 1 हो रहा है 40 मार्क्स का, 90 मिनट्स में जो हमें कंप्लीट करना है, वो टर्म 1 के 40 मार्क्स हमारे फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड होंगे, पक्का होंगे। तो इसीलिए हमारे को ये अच्छे से देना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।